Dear students, here it is Lakshmi Narayan sir. Now we are going to learn lesson number 8 of standard 10, soil formation and its types. Then we come to know what is how soil formation will be taken place. Soil कैसा बनता है वो हम थोड़ा जानकारी लेंगे. Generally the part of surface of the earth wherein the vegetation grows is known as a soil. And the soil will be formed, it will take a long time. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus, air, all these things mixed with air, and it will be passed on to one place to another place. Because of that, soil will be going to formed. Soil is formed due to materials available through the denudation, biotic remnants, humidity and air when going to mix with all these things, and they will be formed a soil. If we consider the other words, we can, if we going to say another words, natural mixture of minerals, biotic and abiotic elements which forms the soil. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contain minerals and biotic elements. So we are already discussed about this. Soil formation जो है वो कई सालों के बाद एक जगह पे सॉइल बनती है. सॉइल बनने के लिए सॉइल के अंदर कई तरह का मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, हुमस, ये सब एयर के साथ जब मिक्स हो के एक जगह से दूसरी जगह पे जब चले जाता है, तो ऐसा जाने के वजह से अपन को कई सालों से एक ही जगह पे ये सब चीज़ें हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जब एक जगह पे फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन अपन को देखने के लिए मिलेगा. और व्हाट टाइप ऑफ सॉइल्स आर दे इन आवर इंडिया? इफ यू कंसिडर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके तहत अगर हम देखा जाएगा तो हमारे देश के अंदर नियरली 8 तरह का सॉइल्स है. We have 8 types of soils: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil and mercy or peaty soil. Okay, we have to discussing now first one, alluvial soil. अभी हम पहला जो वर्ड है alluvial soil, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Alluvial soil is almost all covered in entire India, 43% of total shown area. The soil is found in northern plain of Brahmaputra Valley in the east up to Satluj in the west, in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers. The formation of alluvial soil is due to alluvial deposition by the rivers. There is more proportion of potash, phosphoric and limestone in the soil of these is a less proportion of nitrogen and humus. So the nitrogen content can be stabilized. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oil seeds, etc. can be grown in this soil. Okay, and if you consider that alluvial soil is a very good fertile soil, every type of crops can be grown in this soil. alluvial soil मेरा स्टूडेंट्स, alluvial soil की अगर हम बात करें तो alluvial soil जो है हमारे देश के अंदर कम से कम 43% का एरिया में alluvial soil कवर किया हुआ है. और alluvial soil कहाँ पे हमारे देश के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा? अगर हम वो देखा जाएगा तो नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र से लेके सतलुज, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सतलुज तक, महानदी रीजन, महानदी रीजन में, गोदावरी रीजन में, कृष्णा रीजन में, कावेरी रिवर के रीजन्स में अपन को alluvial soil देखने के लिए मिलेगा. क्योंकि alluvial soil जो है नदियों से बहता हुआ पानी के द्वारा जो अलुवियम आता है, वो अलुवियम के द्वारा ये alluvial soil बनती है. इसलिए इसके अंदर जो है अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को देखने के लिए मिलेगा. और ये सॉइल में अपन को ज़्यादा वीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, माइज, ऑयल सीड्स, इस तरह का क्रॉप्स अपन को इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं. इट इज़ ए वेरी फर्टाइल, ये बहुत अच्छा उपजाऊ जमीन के रूप में माना जाता है. तो इसके बाद हम बात करते हैं रेड सॉइल. इट ऑक्युपाइज अबाउट 19% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया.
ये जो है हमारे भारत के अंदर 19% का एरिया में हमारा भारत के अंदर स्प्रेड हुआ है। ये जो हमारे भारत के अंदर तमिलनाडु से लेके पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया बुंदेलखंड तक अपन को ये देखने के लिए मिलेगा। और वैसे ही राजमहल हिल्स ईस्ट से लेके कच्छ इन द वेस्ट इज आल्सो स्प्रेड दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये सॉइल जो है राजमहल हिल्स ईस्ट साइड से लेके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुजरात के अंदर कच्छ तक ये रेड सॉइल अपन को देखने के लिए मिलेगा। दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये सॉइल रेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो है फेरिक ऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा। कोई कोई जगह पे येलो कलर में भी देखने के लिए मिलेगा ये सॉइल। लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट इस तरह की चीज़ें ये सॉइल में बहुत ज़्यादा देखने के लिए अपन को मिलेगा। बिकॉज इसके वजह से ये लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास ये सॉइल के अंदर नहीं रहता है। इसके वजह से ये सॉइल के अंदर अपन को क्रॉप्स जो है मिलेट, कॉटन, वीट, जोवर, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो इस तरह का ओनली क्रॉप्स हम ये सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। ये हमारे देश के अंदर 15% ऑफ लैंड एरिया में कवर किया हुआ है। दिस सॉइल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। इन गुजरात में also we can find this type of black soil. Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi, Dang districts also we can find these black type of soils. This soil is black due to lava rocks and lavac. Because of that this soil is looking like a black. There is a more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium, magnesium, carbonate in this type of soil. Or this soil has a special characters, like this soil has a capacity of retaining more moisture. Whenever the moisture dries up, they develop fissures. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco, wooded are grown in this type of black soil, and is also very suitable for cotton. So that is why it is also known as a black cotton soil. दोस्तों ये ब्लैक सॉइल जो है हमारे देश के अंदर कम से कम 15% टोटल एरिया में कवर किया हुआ है। ये जो है हमारे देश के अंदर डेक्कन लावा के द्वारा ये हमारे देश के अंदर बना हुआ है, इसलिए लावा एंड लावाइक चीज़ों के द्वारा बनाने की वजह से ये ब्लैक सॉइल हम इसको कहा जाता है। ये सॉइल जो है हमारे देश के अंदर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका में भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। गुजरात में भी ब्लैक सॉइल अपन को हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर गुजरात में भी ये ब्लैक सॉइल है। सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट में अपन को ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलेगा। ये सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊता होने की वजह से ये सॉइल के अंदर अपन को आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट इस तरह की चीज़ें अपन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने के लिए मिलेगा। और ये सॉइल जो है crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco, wooded are grown in this type of soil. It is more suitable to produce cotton also, so it is also known as a black cotton soil. Another laterite soil. The name laterite is derived from the Latin word later, which means a brick. It's red. It is also red in color due to iron oxide. When this soil becomes wet, it becomes smooth like a butter, and when it dries, it is like a very hard, like a rock. Soil you can find only at the higher level of peninsular plateau of India. This soil contains more of iron, potash, aluminium, so that is why it is also a little bit of a fertile, that is why we can say it is a less fertile soil, but we can grow here cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. in this soil. Friends, students, later soil लैटिन वर्ड है, लेटर के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर अपन को आयरन ऑक्साइड होने की वजह से
ये सॉइल रेड कलर में अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये सॉइल वेट मतलब जब गीला होता है ये सॉइल बटर की जैसा बहुत स्मूथ अपन को देखने के लिए मिलेगा। वैसे जब वो सूखने के लगेगा या सूख जाएगा तब यही सॉइल जो है बहुत हार्ड और मजबूत पत्थर की जैसा अपन को ये बन जाता है। और ये चेंजेस इसलिए होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। और हम देखा जाएगा तो इसके अंदर इस तरह का परिवर्तन अपन का आता है क्योंकि इसके अंदर जो है सिलिका बेस्ड मटेरियल नहीं रहता है। और ये सॉइल जो है ज़्यादातर अपन को हायर पेनिनसुला ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। और ये सॉइल के अंदर आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम जो है कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन ये सॉइल उपजा होता बहुत कम होती है। इसको वजह से ये सॉइल के अंदर अपन को कॉटन, पैडी, रैगी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैशूस हम इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, पांचवी सॉइल है डिजर्ट सॉइल। ये सॉइल जो है अपन को ज़्यादातर रेगिस्तान के रूप में माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी एरिड रीजन। ये सैंड से मतलब रेती से भरा हुआ रहता है, ये इनफर्टाइल है। और इसके अंदर जो डिजॉल्व मिनरल्स रहती है और इसके अंदर अगर हम अच्छा खासा अगर पानी की सुविधा अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉइल भी हम अच्छे से फसल अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये सॉइल के अंदर अपन लोग मिलेट, जोवर ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सॉइल जो है हमारे देश के अंदर राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब और गुजरात के अंदर कच्छ प्रांत में, सौराष्ट्र में इस तरह का चीज़ें अपन इस तरह का डिजर्ट इस तरह का सॉइल जो है अपन को देखने के लिए मिलेगा। Dear friends, desert soil is a soil where we can find arid and semi-arid regions. It is a very covered with a sand and infertile. If water is provided this soil, it is also become a fertile and we can grow the crops like millet and jowar here. This type of soil we can find in Rajasthan, Haryana, Southern Punjab and in Gujarat also. If we consider in Gujarat, it will be found at Kutch and Saurashtra regions of in Gujarat. And next one, mountain soil. This type of soil we can find in Himalaya region of altitude 2700 to 3000 meters. The layer is very thin and underdeveloped. This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Kashmir. Whereas in Himalaya we can find these general altitude also, that is pine and chir trees we can grow in this type of soil. Dear friends, the sixth one is mountain soil. Mountain soil हम देखते हैं अपन को माउंटेन से याद आता है, इसलिए ये ज़्यादा कुछ ऊंचाइयों पे इस तरह का सॉइल अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये ज़्यादा हिमालयों के अंदर 2700 से लेकर 3000 मीटर का ऊंचाई पे ये सॉइल अपन को देखने के लिए मिलेगा। और ये सॉइल का लेयर जो है बहुत पतला रहती है और ये ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप नहीं हुआ रहता है। और ये सॉइल के अंदर अपन पाइन और चिड़ ट्रीज हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और ये सॉइल जो है ज़्यादातर अपन को असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में अपन को देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है फॉरेस्ट सॉइल है। ये सॉइल जो है अपन को फॉरेस्ट रीजन से कवर किया रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट रीजन इज देयर हमारे देश के अंदर। 3100 मीटर का ऊंचाई पे अपन को ये फॉरेस्ट सॉइल देखने के लिए मिलेगा। ये ज़्यादा अपन को कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट इन ऑफ हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स, टेराई रीजन ऑफ हिमालयस, इस तरह के रीजन में अपन को देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो सरफेस एरिया जो है शेडेड लीव से कवर किया हुआ होता है। इसका जैसे अपर पार्ट ऑफ लैंड जो ऊपर तरह का जो ज़मीन है वो अपन को ब्लैक रहती है, लेकिन जैसे सा हुमस उसके अंदर ज़्यादा रहती है, जैसे सड़ता जाता है इसका कलर भी कई जगह पे अपन को बदलते हुए दिखाई देता है। कुछ जगह पे ब्लैक, कुछ जगह पे येलो में अपन को ये सॉइल देखने के लिए मिलेगा। इट चेंजेस ब्लू, रेड में भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये सॉइल में अपन को वीट, माइज, बार्ली, पैडी ज़्यादा हम लोग इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है, 8th वन है मेर्सी एंड पीट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज आल्सो कैन फाइंड इन ह्यूमिड रीजन्स बिकॉज ऑफ accumulated biotic elements. And this land is submerged under the water resides, paddy can be grown in it. There is excess biotic elements and minerals in such soil and insufficient potash and phosphorus in this soil. Because of that, it is also very less fertile. This type of soil you can find in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, Central Asia, Northern Bihar, Almoda district of Uttarakhand. All these places you can find this Mersey soil. Dear students, the last one is Mersey and Piti soil.
मेर्सी एंड पीटी सॉइल जो है अपन को ये जो सॉइल है राइनी सीजन में अपन को ज़्यादातर बारिश जब बहुत ज़्यादा गिरता है, बारिश के साथ जो रेती है, पत्ते हैं, ये सब जाके एक जगह पे रुक जाता है और सड़ जाता है। ये रुका और सड़ने के वजह से अपन को मेर्सी और पीटी सॉइल बनती है। और इसके अंदर अबायोटिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, मिनरल भी बहुत ज़्यादा रहता है इस सॉइल के अंदर। बट ये सॉइल जो है इनसफिशेंट, इस सॉइल के अंदर अपन को पोटेस या फॉस्फेट ना होने की वजह से ये लेस फर्टाइल है। और ये सॉइल जो है अपन को ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु में, नॉर्थन बिहार प्रांत में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में अपन को देखने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा।